So yesterday we have discussed about the selection statement, and in continuation with the same, the last topic was I think switch case. और लास्ट में हमने स्विच केस का एक क्वेश्चन भी किया था. So today we will continue with the switch case again. We will do one more question on the switch case. Then we will start with the jump statements. Okay. So this is another conditional statements only. That is a decision making statement, and that consists of break, continue and return. ये तीनों चीज को हम आज समझने की कोशिश करेंगे. देन उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ वी कैन टेक अ इनपुट इन द जावा इफ आई हैव टू टेक सम इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द रन टाइम. सो कल हम लोगों ने जितना भी प्रैक्टिकल किया था उस प्रैक्टिकल में क्या था, उस प्रैक्टिकल में हम लोगों ने किया था कि वी हैव जस्ट गिवन अ वैल्यू टू द वेरिएबल, but we are not taking the value in the real time. Today we'll learn how to take the value in the real time to a particular variable, and then we'll discuss this about the loop. Okay, so this is another important statement that is called the repetition statement. Okay, this is called the repetition statements और लूपिंग स्टेटमेंट. उसके बाद में पढ़ेंगे जिसमें में तीन होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल. इसको भी हम एक एक करके देखते हैं. इज इट ओके? Yes, sir. ओके. सो स्विच केस में किसी को डाउट है? So which case can you please explain once again? Last Okay, time that, when you were okay, that's why explain I'm one. asking. That's why I'm asking. Okay. स्विच केस कल हमने देखा था. स्विच के केसेस में क्या लिखते हैं? स्विच, और स्विच के अंदर में वी गिव द एक्सप्रेशन. Okay. And in case of the expression, let's see what we'll give. We give expression, and in a switch what we give case. केस की जो भी वैल्यू हो, फॉर एग्जाम्पल हमारी केस की वैल्यू 1 2 3 जो भी हो सकती है, सो केस वैल्यू देखेंगे. ओके, फर्स्ट वैल्यू केस वैल्यू 1. देन यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं. हियर वी राइट द स्टेटमेंट्स, एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेक. वी राइट द ब्रेक. देन आफ्टर दैट similarly there will be case value 2. Then also we have to put a column. Then we write a statement. And then we put a break. Okay. Then this will go on. Break में भी आपको एक semicolon होगा, and this will go on till the last. At the last we have to use default, and here we have to give the default statement. Okay. And at the last we put the curly bracket close. Are you getting the point? Yes, sir. Okay. Suppose, and today we'll do one practical also on the basis of this. So let's see one practical. Okay. So I will just open a notepad. Okay. Today I will give a link for the NetBeans. You can download the NetBeans also. Or if you say I will do the practical in the NetBeans, I will show you how to use the NetBeans. Okay. Let's see. So मुझे आज एक क्वेश्चन ये करना है. क्वेश्चन ये है कि we have suppose you have to ask the user to input a day number. Okay. So question is, I will just put a question in there. So I have to input day number, day NUMBER number from the user, and display the respective CDIVE, respective day name. ओके. अब लेकिन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट अ डे नंबर फ्रॉम द यूजर, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं कि यूजर से कैसे इनपुट करना है. तो अभी हम एक आपको बात बताते हैं कि यूजर से इनपुट कैसे करते हैं. यूजर से इनपुट करने के लिए इसी वाले सेशन में कर लेते हैं. ठीक है, फिर आपको अलग से नहीं बताना पड़ेगा. सो यूजर से इनपुट कैसे करते हैं वो देखते हैं हम. यूजर से इनपुट करने का दो तरीका है. ओके. सो मैं आपको इसको ऐसे बताता हूँ. द फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग, let's see, the first method is by using in IO package, and second is और IO package में आपको मिलेगा आपको बफर रीडर,
FFERED बफर्ड रीडर नाम का एक क्लास है और इस क्लास के अंदर में आपको इनपुट रीडर नाम का INPUT इनपुट स्ट्रीम STREAM इनपुट स्ट्रीम रीडर नाम का एक क्लास मिलता है, उसको यूज करेंगे STREAM स्ट्रीम रीडर READER। ये आपको मिलेगा इनपुट IO पैकेज के अंदर में। दूसरा तरीका है, सेकेंड मेथड है, वी कैन यूज द util पैकेज UTIL util पैकेज। util एक लाइब्रेरी है, util पैकेज यूज करेंगे और util के अंदर हमें मिलेगा एक स्कैनर क्लास SCANNER स्कैनर क्लास। इन दोनों मेथड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आसान तरीका कौन सा है, आपको स्कैनर वाला आसान तरीका है, ठीक है, और बफर रीडर भी आपको दोनों तरीका बताएंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग util पैकेज यूज करेंगे। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, सो चलिए हम util पैकेज को यूज करते हैं। यहाँ पे कैसे यूज करते हैं ये देखिए ध्यान से। सो इसको हमें इनपुट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो कम टू द नेक्स्ट लाइन, हम नेक्स्ट लाइन में आते हैं। नाउ हियर आई विल राइट इंपोर्ट java java.util। we are using the second method, okay, java.util util.asterisk। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि util नाम का एक पैकेज है, उस util पैकेज के अंदर में जितने भी लाइब्रेरीज हैं और जितने भी क्लासेस हैं उनको मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। किस लिए बुला रहा हूँ, जिससे कि हम इनपुट कर सकें। उनमें से सबको बुला रहे हैं, लेकिन उनमें से एक को यूज करेंगे, कौन सा, स्कैनर यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, अपना क्लास जैसे हम क्लास बनाते हैं वैसे क्लास बनाए। सो फॉर एग्जांपल ये स्विच डेमो नाम का SW, ये हम लोग ये पढ़ रहे हैं स्विच डेमो DEMO, स्विच केस डेमो, ओके, स्विच केस डेमो DEMO, स्विच केस डेमो नाम का एक फाइल बनाता है। और इस फाइल के अंदर में हम लिख देते हैं PUBLIC पब्लिक, STATIC स्टैटिक, VOID void, MAIN मेन, ओके। और इसके अंदर में STRING स्ट्रिंग ARGS, ठीक है, स्ट्रिंग ARGS। और यहाँ भी हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगाया और लास्ट, और आपको गलती ना हो तो लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका फाइल आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर में हम अपने क्वेश्चन के अनुसार कोडिंग करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक यूजर से इनपुट करना है, क्या इनपुट करना है, डे का नंबर इनपुट करना है, ओके। सो डे का नंबर इनपुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव टेक वन वेरिएबल। सो फॉर एग्जांपल वेरिएबल तो हम डायरेक्टली वैल्यू दे देंगे, लेकिन हम एक यूजर को मैसेज देते हैं कि एंटर एनी डे नंबर, ओके। सो हमने एक मैसेज दिया सिस्टम डॉट out डॉट print प्रिंट 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 ln भी दे सकते हैं, प्रिंट भी दे सकते हैं, ओके। सो प्रिंट ln देंगे तो लाइन चेंज होगा, प्रिंट सिर्फ देंगे तो लाइन चेंज नहीं होगा। तो आई डोंट वांट टू चेंज द लाइन, अब उसी लाइन में करना है, तो हमने प्रिंट दे दिया। क्या देंगे, एक मैसेज एंटर एनी डे नंबर, ठीक है। और ये डे नंबर कहां से कहां तक होना चाहिए, 1 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए, 1 to 7। मैंने ये ऑप्शन भी दे दिया यूजर को कि इनमें से कोई भी एक नंबर इनपुट करो, ठीक है। और ये ऐसे यूजर के लिए मैसेज हो गया, ये आपका यूजर के लिए मैसेज हो गया, इज इट ओके। और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका यूजर का एक मैसेज हो गया, यूजर के पास ये मैसेज आएगा जब यूजर, अब देखो ध्यान से, अब एक चीज और, मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए कौन सा क्लास यूज करते हैं, स्कैनर क्लास। यहाँ पे हम जा रहे हैं स्कैनर क्लास यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैनर नाम का SCANNER स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, S इक्वल्स टू न्यू SCANNER। ये आज नया पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और इसी का हेल्प लेंगे हम इनपुट करने के लिए। स्कैनर S इक्वल्स टू न्यू स्कैनर न्यू SCANNER न्यू स्कैनर, सॉरी ये तो लिख चुके हैं ना, न्यू स्कैनर। यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट IN, ओके, सिस्टम डॉट इन। ये हमने ये हो गया। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, स्कैनर S इक्वल्स टू न्यू स्कैनर
सिस्टम डॉट इन। यहाँ क्या हो गया, एक्चुअली ये है क्या, दिस स्कैनर इज a क्लास, ओके, new is a keyword and s is the object of the class I am going to create, क्योंकि हमने बताया था स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। और एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास के अंदर में कुछ भी चीजें हैं, क्लास के अंदर में मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को बुलाने के लिए हम तब तक नहीं बुला सकते हैं जब तक हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन हमने बढ़ा था वेरिएबल में तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है आपका क्लास वेरिएबल जिसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल, और तीसरा और एक और पड़ा था इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पे ये जो है वेरिएबल, ये एस भी वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा है। इज इट ओके? ये आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। नाउ तो अब क्या करेंगे हम, मुझे इनपुट करना है तो INT, जैसे हम लोग पहले पहले क्या करते थे, फॉर एग्जांपल INT मान लो हमने n लेना है, n इस वक्त मुझे 5 देना है तो 5 दे देते हैं, लेकिन ये 5 हम नहीं दे रहे हैं, 5 हम यूजर से मांग रहे हैं। ठीक है, तो यूजर कब देगा, जब ये मैसेज आएगा। तो जैसे ही मैसेज ये देख, जब ये मैसेज आएगा तो यूजर कुछ इनपुट देगा, जैसे इनपुट देगा वो s उसको कैचअप करेगा। तो क्या करेंगे, अब एक चीज और देखेंगे, आज एक चीज और देखेंगे, जब हम वैल्यू हम यूजर से कुछ लेते हैं तो वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आता है, मुझे नंबर चाहिए तो हम कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर INTEGER इंटीजर डॉट PARSE पार्स INT। पार्स INT क्या है, एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अपना पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, जो सुन रहे हो ध्यान से सुनिएगा। This integer.parseInt is a function that converts any input, string input into number. Okay? और किसको बदलेगा ये, जो इनपुट आएगा, इनपुट कहाँ आएगा, s, s क्या इनपुट आएगा, नेक्स्ट, NEXT, नेक्स्ट, हमने किया नेक्स्ट मान लो लाइन। ठीक है, नेक्स्ट INT भी कर सकते हो, नेक्स्ट लाइन भी कर सकते हो, मैंने किया नेक्स्ट लाइन, और ये हमारा एक लाइन बन गया। ठीक है, अब देखो चेक करते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं, फिर आगे की प्रोग्रामिंग करते हैं। ओके, तो चलिए हम प्रिंट करते हैं, सॉरी हमने ऐसे लिखा SYSTEM सिस्टम डॉट out डॉट print प्रिंट, और मैंने लिखा योर नंबर योर entered entered number is क्या, योर एंटर्ड नंबर इज, जो वेरिएबल में आया है, क्या वेरिएबल में आया है, वेरिएबल में आया है आपका n। ये ऐसा मैसेज आएगा। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता चला कि हम जो इनपुट कर रहे हैं इनपुट हो रहा है कि नहीं, फिर आगे की प्रोग्रामिंग स्विच से प्रोग्रामिंग यूज करेंगे। ये समझ में आता है सबको? हेलो, Yes. ओके, तो Yes, अभी sir. ये फाइल का नाम क्या दें, फाइल का नाम है हमारा स्विच केस, SWITCH स्विच CASE स्विच केस डेमो, स्विच केस डेमो, ये हमारा फाइल हो गया। डॉट जावा लगाना है और नीचे आपका ऑल फाइल्स करना है और इसको सेव करना है। सेव कर दिया। अब आते हैं कहाँ, अब जाते हैं हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। ओके, ये इसको बंद कर देते हैं, फिर से खोल देते हैं। हम आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में CMD, और हमारा फाइल है डी ड्राइव के अंदर। डी ड्राइव के अंदर हमारा फोल्डर है समर कोडिंग, SUMMER समर CODING समर कोडिंग 2023। ओके, ये हमारा फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर में हमारा एक फोल्डर है जावा, और इसके अंदर में हमारा फाइल है। फाइल क्या है, आपको कंपाइलर बुला लो, जावा C, देन SWITCH स्विच CASE स्विच केस अंडरस्कोर डेमो डॉट जावा। ठीक है, एंटर किया, और ये एंटर कर दिया। नाउ देयर इज नो एरर, नाउ वी विल रन दिस प्रोग्राम, जावा SWITCH स्विच CASE अंडरस्कोर डेमो। ओके, रन किया। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कुड नॉट फाइंड और लोड स्विच केस डेमो। फिर से एक बार कंपाइल करते हैं। ओके, देयर इज नो एरर, switch case demo spelling is correct, java C, So the spelling you wrote in the class name, I think that was a bit different. which one, C was not there.
Sir, in the notepad that the file you made. Okay, let me check it. SWIT, अच्छा. C was not there, na? Okay, I have to Yes. compile it again. Okay, good. ये स्पेलिंग मिस्टेक है. Either you can do one thing. सुनो ध्यान से, क्योंकि स्पेलिंग तो SWITCH होता है ना. So I will just change it here and I will compile it again. No problem. Okay. तो हम क्यों गलत की? Okay. SWITCH. Okay. स्विच केस डेमो. ओके, ठीक है. चलो ठीक है. अभी स्विच केस डेमो को रन करते हैं. ठीक है, देखो. It is asking me to enter a number. For example, I have entered the number 5. And now see, your entered number is 5. Are you getting the point? Yes, sir. Again, I will just run it, this program. And again, it is asking me to enter any number. I'm giving the number as 34. Now let's see. Now I'm getting a message. Your entered number is 34. इतना समझ में आया? So this is the Yes. first part of your program that, क्योंकि प्रोग्राम में मैंने क्वेश्चन में दिया था इनपुट डे नंबर फ्रॉम द यूजर. ये डे नंबर आ गया यूजर से, ठीक है. अब डे नंबर, ये जो लाइन तो ये तो लाइन आपके लिए लिखा था मैसेज, ये तो आपको डिस्प्ले के लिए, इस लाइन का भी काम नहीं है. नाउ आई हैव गॉट द नंबर. नाउ आई विल पुट दिस नंबर. सुनो ध्यान से. नाउ आई एम गेटिंग द नंबर. नाउ आई विल पुट दिस नंबर इन द स्विच. तो द सिंटेक्स इज SWITCH स्विच एंड ब्रैकेट में एक्सप्रेशन. दिस नंबर विल इटसेल्फ द एक्सप्रेशन. ये जाएगा, वो चेक करेगा, ठीक है. अब ये स्विच हो गया. अब स्विच के अंदर में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे डालेंगे केस. नाउ व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n? द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n कैन बी 1 2 3 4 5 6 और 7. ओके, सो सपोज आई एम गिविंग हियर केस केस 1. सो n की वैल्यू 1 हो सकती है. तो जब n की वैल्यू 1 होगी, ओके, तो आई विल डू वन थिंग. एक और चीज से नहीं, तो मुझे बार बार एक टुडे इज मंडे, टुडे ऐसे लिखना है मुझे, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का. STRING स्ट्रिंग DAY, ठीक है. और स्ट्रिंग डे में ऐसे खाली छोड़ देते हैं, इसको पहले से कुछ नहीं देंगे वैल्यू, ठीक है. स्ट्रिंग डे वैल्यू खाली है, ठीक है. सो और यहाँ पे जैसे केस 1 होगा तो डे की वैल्यू चेंज कर देंगे. डे इसका तो क्या हो जाएगा आज, अगर संडे से शुरू करना है तो डे 1 मान लो, केस 1 होगा तो संडे, ठीक है. संडे से मान लो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो डे 1 आपका संडे हो गया, ठीक है. ये इसको आप ऐसे भी, इसके अंदर भी ऐसे भी लिख सकते हो. साफ साफ होगा आपकी कोडिंग तो आपको ये भी समझ में आएगा, ठीक है. या सेम लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. और इसके बाद आपको ब्रेक करना है, ठीक. ये हो गया. सिमिलरली आप केस 2 के लिए लिखेंगे. अगर n की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 और ये हो जाएगा आपका मंडे. 3 के लिए ट्यूसडे, TUESDA. नाउ एक और केस बनाते हैं, बाकी आप खुद से करिएगा. मान लो हमने 6, मान लो हमने 5 के लिए बनाया, या मान लो 7 के लिए बनाया. ओके, 7 क्या होगा, 7 होगा सैटरडे, ठीक है. अभी बीच में बनाना है, अभी बीच में बनाया नहीं है मैंने, ठीक है. तो बीच में अभी बनाना है, ठीक है. तो 4 5 6 अभी बनाना पड़ेगा. और अगर ये मैंने एक दे दिया डिफॉल्ट, DEFAULT, डिफॉल्ट. डिफॉल्ट में डे क्या होगा, एक मैसेज, सिंपली एक मैसेज दे देते हैं, या ओके. तो डिफॉल्ट में डे हमने दे दिया, डे इक्वल्स टू इनवैलिड. इनवैलिड नाउ ये जो लास्ट में मैसेज है, ये मैसेज हम यहाँ पे अब डालते हैं. सो यू हैव, या ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इनपुट. तो यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं. ये मैसेज कहाँ आएगा, बाद में आएगा. तो स्विच सब होने के बाद आपका एक मैसेज आएगा, टुडे इज क्या है,
टुडे क्या है, टुडे ये होगा जो डे की वैल्यू होगी, टुडे इज डे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हेलो, Yes, sir. ओके। और यहाँ पे डे की वैल्यू इनवैलिड देता है, तो ये पे एक प्रॉपर मैसेज नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप खुद से एक मैसेज डाल देते हो, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड डे और इनवैलिड नंबर। यहाँ पे सिंपली आप ऐसे देख सकते हो, इसको हटा के यहाँ पे लिख सकते हो यू हैव, या एक मैसेज दे दो, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। ओके, इनवैलिड, प्लीज एंटर वैलिड नंबर। सो ऐसे हमने मैसेज दे दिया। नाउ लेट्स सी, इसको रन करते हैं। ये अब ओके, एक एरर है। क्या एरर है? यहाँ पे एक ब्रैकेट का दिखा रहा है कि रीच्ड एंड ऑफ। ओके, सो यहाँ देखिए हमने क्या, यहाँ पे स्विच को हमने, स्विच का कर्ली ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है, स्विच का कर्ली ब्रैकेट यहाँ बंद होगा। ठीक है, तो चलिए फिर से, now let's see there is no error. So now we'll run this file. So it is asking me to enter a valid, enter any day number from 1 to 7. Suppose I have given a 4. Okay, 4 एंटर किया। सो ये इसमें क्या दिखा रहा है, 4 के लिए प्लीज एंटर द वैलिड नंबर, और टुडे इज भी आ रहा है। क्योंकि टुडे इज क्यों आ रहा है, टुडे इज मैंने लास्ट में लिख दिया है, इससे। इज इट ओके? हेलो, तो ये कैसे सही होगा, ये देखिए ऐसे सही होगा। सो ये ऐसे सही होगा कि आप इसको, या तो इसके लिए पर्टिकुलर एक और हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा, तो अभी हम ब्लॉक नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको सिंपली ऐसे कर देते हैं लास्ट में, नहीं तो एक फ्लैग लगा के भी कर सकते हैं इसको। तो अभी सिंपली एक ये आपका एक और कर देते हैं, DAY, और यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो भी हो सकता है। तो अभी हम लोग वो पढ़े नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट है, तो उससे हम जंप करवा देंगे, आपको ये भी बताएंगे। सो थोड़ा सा वेट कर लो इसके लिए। सो डे करते हैं, और डे में हमने दे दिया क्या, इनवैलिड, इनवैलिड दे दिया जैसे पहले दिया था, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी। सो जस्ट आई हैव एंटर्ड इट, और अब एक वैलिड नंबर देते हैं 1। सो यू कैन सी, लेकिन मेरे पास 1 पे कोई वैल्यू नहीं आ रही, क्यों? 1 पे दिया है, 1 पे क्या दिया है, संडे। सो टुडे इज संडे आना चाहिए, लेकिन ये संडे नहीं आ रहा है। ओके, एरर इसलिए है, यहाँ पे देखो स्विच, देखो ध्यान से देखिए, स्विच यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब एक बार आपने ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने से क्या होता है, तो जैसे ही हम ब्रेक करेंगे तो कंट्रोल विल गो आउटसाइड द स्विच। ओके, और ये स्टेटमेंट मैंने कहा दिया है, इनसाइड द स्विच दिया है। सो व्हाट आई हैव टू डू इट, मुझे वापस जाना पड़ेगा, और ये स्टेटमेंट जो मैंने दिया है वो स्विच के बाहर लिख दीजिए, बाकी और कुछ नहीं करना है। ये स्टेटमेंट आपको स्विच के बाहर, ठीक। अब इसको सेव किया मैंने, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको स्विच के बाहर कर दिया। ओके, आप देखो रन करो, इट इज आस्किंग मी टू एंटर एनी नंबर, सो हमने 2 एंटर किया अगेन। सो नाउ यू सी टुडे इज मंडे। आर यू गेटिंग? ये समझ में आया क्या हुआ था? Yes, sir. क्या हुआ था, ये स्विच, क्योंकि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया था, एंड ब्रेक कीजिए जंप स्टेटमेंट, आज ये पढ़ेंगे, ब्रेक कीजिए जंप स्टेटमेंट। और हमने जो कोड लिखा था वो विद इन अ स्विच के अंदर लिखा था। तो जब यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होगा तो क्या होगा, आपका सीधे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है, मैं आपको काम करना ऐसा सिखाता हूँ, बता देता हूँ कैसे ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। ये काम कुछ ऐसे कर रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। सो अभी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, स्विच, ये वाला, ये जो अभी हमने स्विच लिखा था, इस केसेस में, और मैं देखो ध्यान से, सो हियर आई हैव गिवन द वैल्यू एज, हियर आई हैव गिवन द वैल्यू n, यहाँ पे n की वैल्यू दिया, n या तो 1 है या तो 2 है, ऐसे ऐसे करके, या तो डिफॉल्ट है। तो आपने n की वैल्यू जब 1 थी, तो जो आपने स्टेटमेंट दिया कि डे की वैल्यू, डे इक्वल्स टू मंडे, डे इक्वल्स टू मंडे, यही लिखा था। हेलो, Yes, sir. तो और
अगर 2 होगा तो डे की वैल्यू क्या होगी, डे इक्वल्स टू ट्यूसडे, यही लिखा था। नाउ when when we are giving the value of n, so automatically switch क्या करेगा, वो देखेगा कि n की वैल्यू क्या है। अगर n की वैल्यू 1 होगी, द कंट्रोल विल पास टू केस 1 में चला जाएगा, और केस 1 में जो भी वैल्यू होगी वो इनिशियलाइज होगा, ये वैल्यू ये डे की इनिशियलाइज हो जाएगी। और यहाँ पे ब्रेक है, और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यू विल जंप आउटसाइड द स्विच के बाहर निकल जाओगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. सिमिलरली अब देखो ध्यान से, अगर n की वैल्यू आपकी 2 है, तो डायरेक्टली विल गो टू जंप टू केस 2। केस 2 में डे की वैल्यू ट्यूसडे हो जाएगी, और जैसे ही ब्रेक आएगा, अगेन यू विल गो आउटसाइड द स्विच। सो एक समय में एक ही केस हो सकता है, या आपने ब्रेक नहीं लगाया तो दो दो केस हो सकते हैं। सो दिस वे दिस ब्रेक इज ए ये जो ब्रेक है इज ए जंप स्टेटमेंट। क्या है ये? जंप स्टेटमेंट। इज इट ओके? Yes. ओके। Yes, sir. सो ये आज वाला जो प्रैक्टिकल है वो समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने इसमें दो चीज पढ़ा है, स्विच केस तो रिवाइज किया है, लेकिन इसमें न्यू पार्ट क्या है? न्यू पार्ट ये है कि आपको इनपुट करना है यूजर से वैल्यू, तो आपको एक लाइब्रेरी चाहिए। वो पैकेज क्या है? वो पैकेज है util। सो यू हैव टू राइट एट द टॉप, क्लास डिफाइन करने से पहले ही आपको लिखना पड़ेगा import java.util.asterisk, और जहां पे आपको इंपोर्ट करना होगा वहां पे, या जस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद फर्स्ट लाइन आप दे सकते हो। उस स्कैनर मुझे क्लास यूज करना है, उस स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना देंगे, स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ओके, देन आफ्टर दैट जहां पे आपको इनपुट करना है, इनपुट वाले लाइन में वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पहले क्या लिखते थे, int n इक्वल्स टू 5 ले लिए थे। अब 5 नहीं लेना है, अब मुझे क्या लेना है, यूजर से लेना है। तो यूजर से लेने के लिए, क्योंकि मुझे नंबर लेना है, तो नंबर के लिए इंटीजर डॉट पार्स int। अगर फ्लोट लेना है तो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। डबल लेना है तो डबल डॉट पार्स डबल। इज इट ओके? और यहाँ देखिए एस डॉट नेक्स्ट लाइन मीन्स, जो हम नेक्स्ट लाइन में जो भी वैल्यू देंगे, दैट वैल्यू विल बी टेकन बाय एस मतलब स्कैनर जो ऑब्जेक्ट है वो ले लेगा, वो लेके इस फंक्शन को देगा, दैट इज कौन से, ये इंटीजर डॉट पार्स int को देगा। वो क्या कर लेगा, उसको नंबर में बदलेगा, नंबर में बदल के उसको n में स्टोर कर देगा। इज इट ओके? आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? Sir, one doubt. हाँ बोलिए। Sir, here you have written that enter any day number. So the value of n should be day number. हाँ, नंबर, इट शुड बी ए नंबर बिटवीन 1 to 7। क्वेश्चन ये था कि आपको नंबर लेना है, 1 से 7 तक का नंबर लेना है, और डिपेंडिंग ऑन द एंटर नंबर यू हैव टू डिस्प्ले अ डे नेम। And sir, that is the case value that we have written, like it is written day equals to, then enclosed in double inverted comma Sunday. हाँ, So here No, Sunday is a string now- value. now So is listen. that सुनो। हाँ, वेरी गुड। You have asked a very good question. Now, what I am asking the user to give the number, I have to display a string, है ना? So you can see here I have created a string variable, string day equals to dash डाल दिया है, खाली जगह। हेलो, Yes, sir. तो ये क्या है, डे हम वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, लेकिन स्विच के अंदर क्या दे रहे हैं, स्विच के अंदर n दे रहे हैं, कि स्विच चेक करेगा कि वो नंबर 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। तो स्विच को n से मतलब है, हमारे डे से मतलब नहीं है। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, नाउ योर डाउट इज क्लियर? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आज के क्लास में अभी हमने स्विच केस को रिवाइज किया, और स्विच केस के साथ में ये वाला भी पार्ट कर लिया। अभी कौन सा, ये टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द ईयर, ये भी हो गया। नाउ अभी आते हैं जंप स्टेटमेंट के बारे में, देखते हैं ये जंप स्टेटमेंट है क्या। जंप स्टेटमेंट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक 4 लाइन लिख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ कोड फॉर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एंड लाइन 4, एंड व्हाट यू वांट फ्रॉम द लाइन 1 you have to jump to line 3,
और या हमने लाइन 3 पे चला गया, एक कंडीशन है यहाँ पे, अगर कंडीशन 2 है तो वापस वापस 1 पे जाना है, वापस या 2 पे जाना है। तो मतलब ignoring some statement, I have to jump from one statement to another statement, ignoring some of the statements. For this, what you have to use? You have to use jump statement. Are you getting the point? So jump statement, jump statement. What is the use of jump statement? Jump statement is used to transfer the control to another part of the program. Okay. So suppose I have written a 4 line. एक या ये एक पर्टिकुलर इस प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर ग्रुप है। दूसरा हमने कोड ये 4 लाइन या 5 लाइन का कोड एक अलग काम के लिए लिखा है, और दूसरा एक अलग कोड लिखा है ये तीसरा काम के लिए। बट these all are in a one program only. ये सारे एक ही प्रोग्राम के पार्ट हैं। सो व्हाट आई वांट टू डू कि इस प्रोग्राम को खत्म होने के बाद यहाँ कुछ कंडीशन है, अगर ये कंडीशन 2 है तो आई हैव टू जंप टू द थर्ड प्रोग्राम इग्नोरिंग द सेकंड प्रोग्राम। तो ये जाएंगे कैसे? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जावा रन्स ऑल द प्रोग्राम इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, लाइन बाय लाइन करेगा। सो फॉर दिस, अगर मुझे जंप करवाना है एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में, या कंट्रोल को पास करना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, देन आई हैव टू यूज जंप स्टेटमेंट। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. ओके। सो जावा में जंप स्टेटमेंट 3 है। वन इज अ ब्रेक, रिटर्न एंड कंटिन्यू। ओके, अभी हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू को पहले देखते हैं, फिर आपको रिटर्न के बारे में बताएंगे। पहले ब्रेक देखिए। अभी जस्ट नाउ वी हैव सीन अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट। सो व्हाट द ब्रेक स्टेटमेंट डू? ब्रेक स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इट ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। सो सपोज अभी आपने स्विच में क्या किया, कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था, आपने n की वैल्यू स्विच में दिया। अगर n की वैल्यू जो ट्रू है तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट चला, और वो स्टेटमेंट के बाद ब्रेक हो गया। जैसे ही आपका ब्रेक हुआ तो आप क्या हो गए, आप पूरा बाहर निकल गए। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो वापस जा रहा है। ओके, और कंडीशन फॉल्स, अगर आपका जो कंडीशन, ये एक्चुअली में अभी स्विच केस में हम लोग यूज किया था, इसको मोस्टली हम लोग यूज करेंगे ब्रेक और कंटिन्यू को लूप में। अभी लूप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आसानी से और भी समझ में आएगा। लूप का मतलब होता है, ये मैंने एग्जांपल दिया लूप का, ठीक है। एक लूप का मतलब होता है कि एक ही काम को बार बार करना, ठीक है। सपोज एक कंडीशन है, कंडीशन यदि ट्रू होता है तो आप बाहर निकल सकते हो, कंडीशन फॉल्स। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा ऐसे है कि टीचर ने आपको एक होमवर्क दिया है, और होमवर्क जो है बोला है कि आपको ये पहले कंप्लीट करना है, क्लास में ही कंप्लीट करना है, और आप तभी जाओगे जब आप काम अपना कंप्लीट कर लोगे। तो टीचर ने कंडीशन किया, यू हैव टू फिनिश योर वर्क देन यू कैन गो। तो आपने टीचर से गया पूछने के लिए कि टीचर क्या मैं जा सकता हूँ? तो टीचर ने बोला, हैव यू फिनिश योर वर्क? Either your answer will be true or false. If your answer is false, the teacher will ask you to do it again. Or if your answer is true that you have finished the work, then teacher will allow you to go. So allow you to go means your program will be breakout. Are you getting the point? Yes, sir. हाँ, ये ब्रेक का ये काम है। दूसरा देखो स्विच, सॉरी, कम टू द कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या है? कंटिन्यू ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 1 2 3 4 6 7, तो मैंने यहाँ पे देखिए 5 को इग्नोर कर दिया है। ओके, सो मुझे क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक प्रिंट करना है, इग्नोरिंग द 5। ओके, तो 5 को छोड़ के बाकी सब नंबर प्रिंट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन क्या है कि अगर मेरा नंबर 5 है तो इग्नोर, डोंट प्रिंट एंड कंटिन्यू द रेस्ट। ओके, सो 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, और जैसे ही 5 आएगा 5 को इग्नोर करके आगे कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ब्रेक लगा होता तो ब्रेक 4 के बाद सीधे बाहर निकल जाता, बाकी भी नहीं प्रिंट करता। लेकिन कंटिन्यू में मुझे कंटिन्यू में क्या करना है कि करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन पे रुक के आगे बढ़ जाना है। तो ऐसे केसेस में हम कंटिन्यू यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. फिर से देखिए, मेरे पास कुछ कंडीशन है, कंडीशन यदि ट्रू है तो कंटिन्यू करेंगे, कंडीशन फॉल्स है तो बाहर निकल जाएंगे। फिर कंटिन्यू में भी कंटिन्यू यस है तो कंटिन्यू वापस वही काम कर देंगे, और कंटिन्यू फॉल्स है तो बाहर आके अपना लूप को बंद कर देंगे। ये आगे लूप में पढ़ेंगे तो ये और भी समझ में आएगा। अब आते हैं रिटर्न। अब देखो ध्यान से, रिटर्न क्या है, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी यूज किया था। इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनना,
इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, अभी हम आपको प्रोग्राम दिखाए वो हमारा प्रोग्राम ये है। इस प्रोग्राम में आपने यहाँ देखो ध्यान से, ये लाइन दिख रहा है आपको? Yes, sir. इस लाइन में क्या हो रहा है, हियर इज अ फंक्शन पार्स आईएनटी, और पार्स आईएनटी के ब्रैकेट में मैंने लिखा है एस डॉट नेक्स्ट लाइन। ये नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, जो भी हम नेक्स्ट लाइन में कुछ इनपुट करेंगे वो रिसीव करके पार्स आईएनटी नाम के फंक्शन को दे देगा। पार्स आईएनटी नाम का फंक्शन क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एन में स्टोर करेगा। दैट मींस दिस फंक्शन आल्सो टेकिंग द वैल्यू एंड गिविंग द वैल्यू, और वही वैल्यू जो कन्वर्ट होके आ रहा है वो एन में स्टोर हो रहा है ना? तो रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू, वापस कुछ वैल्यू देने के लिए। सपोज देयर इज वन फंक्शन, एक फंक्शन है इंक्रीमेंट नाम का एक फंक्शन है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन डिफाइन किया गया है और ये फंक्शन आपका मेन के बाहर है। मेन आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है? ये एक सिंपल सा एक फंक्शन का एग्जांपल दिया है। तो ये एक फंक्शन बनाया गया, इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन बनाया गया है। इस फंक्शन को एन नाम का, मतलब एन नहीं सॉरी, इंटीजर नाम का एक वेरिएबल चाहिए, इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए, ठीक है? वो एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ओके? और कुछ भी प्रोग्राम करने के बाद लास्ट में वो जो भी नंबर होगा, एक नम नाम का एक वेरिएबल है, उसको वो रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या है, जहां पे हम इस फंक्शन को बुलाएंगे वहां पे नम की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी। तो सपोज इस प्रोग्राम में इंक्रीमेंट यहाँ लिखा गया है, इंक्रीमेंट, और इस ब्रैकेट में अंदर कुछ वैल्यू डाल दिया, एन डाल दिया। तो एन की वैल्यू क्या होगी, जो नम की वैल्यू होगी, जो नम यहाँ से रिटर्न होगा वही एन की वैल्यू हो जाएगी, और वही, या ऐसे इसको समझ सकते हो, इंक्रीमेंट के अंदर में एन डाला गया है, ठीक है? तो ये एन कहाँ जाएगा, एन इस फंक्शन में जाएगा, दैट इज ये, और बाद में यही रिटर्न हो जाएगा, नम की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी हम प्रिंट करेंगे वो नम की वैल्यू प्रिंट होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल्ड फंक्शन, इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। ये थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया है बिना फंक्शन बनाए। आगे हम लोग फंक्शन करेंगे तो उसमें समझ में आएगा ये रिटर्न एक्चुअली होता क्या है। रिटर्न का मतलब अपने सिंपल सा इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बर्थडे में बुलाया है, आप बर्थडे में गए हो गिफ्ट लेके, ठीक है? आपने गिफ्ट दिया, अब फिर गिफ्ट देने के बाद जब आप घर अपने वापस आ रहे हो तो जिसके बर्थडे में गए हो वो भी आपको कुछ रिटर्न दे रहा है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड अ रिटर्न टाइप। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है? और ये प्रोग्राम में भी कुछ ऐसे ही करते हैं, और प्रोग्राम में करने के लिए हम एक कीवर्ड लगाते हैं रिटर्न, RETURN। जिस वैल्यू को हमें रिटर्न वापस करवाना है उस वैल्यू के आगे रिटर्न लगा देंगे, वो वैल्यू रिटर्न होगी। और ये कहाँ यूज करते हैं, ये फंक्शंस में यूज करते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है इसलिए फंक्शन यूज करते हैं। इज इट ओके? तो ये आगे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, अपना खुद का फंक्शन बनाएंगे तो उसमें हम आपको ये बता देंगे। तो आगे बढ़े। Yes. 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 Okay. Now today we will learn about the loops in Java. Loops का मतलब होता है repetition statement. Okay. So what is the meaning of loop? Loop means repetition. Okay. और iterative statements. Loops को बोलते हैं iterative. Okay. So यहाँ पे loop का मतलब होता है, loop का दो वर्ड हो। Loop may be a repetition, REPEATIT, repetition, और loop may be a, और इसको बोलते हैं iteration, ITERATION, इटरेशन। ओके, इटरेट करना, इटरेट मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। ओके, सो लूपिंग एक प्रोग्रामिंग का एक फीचर्स होता है जो आपको फैसिलिटेट करता है कि पर्टिकुलर, मान लो हमने 4 लाइन का कोड लिखा है, ओके? ये 4 लाइन मुझे अपने प्रोग्राम में बार बार मुझे 10 बार चाहिए। ओके, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू रन दिस 4 लाइंस 10 टाइम्स। सो नॉर्मली हम प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट 10 टाइम्स। So I don't want to write the 10 times, but I want to execute this statement 10 times. And for this purpose, we can use the loop. Is it okay? So what the loop can do, loop can execute a block of code as long as a specified condition is reached. जब तक आपका कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाता है और जब तक आपका कंडीशन ट्रू रहता है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड आपका एग्जीक्यूट करता रहेगा। इज इट ओके? तो इससे फायदा क्या है, अभी मैंने क्या बोला कि आपको अपना 4 स्टेटमेंट है, एंड दिस 4 स्टेटमेंट यू हैव टू एग्जीक्यूट 10 टाइम्स। ओके, एग्जीक्यूट 10 टाइम्स। सो व्हाट यू नीड टू डू, you have to write these 4 lines 10 times
Is it okay? But using the loop, you have to write only once. Write one time only. So लूप में आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली हम करना है तो मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा। तो कौन सा सही है? लूप लूप ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हमारा टाइम बच जाएगा, इट सेव्स द टाइम, रिड्यूस द एरर। अगर हम कम लिखेंगे तो गलतियां भी कम होंगी। ओके, एंड दे मेक द कोड मोर रीडेबल। और इससे आपको आपको मैं बोला कि कोड पढ़ लो, तो आप बोर भी नहीं होगे। आप वो कम कम लिखा हुआ है तो उसको बेटर आप पढ़ सकते हैं। सो इट मेक्स our code, it makes the program to save the time, reduce the errors, as well as it will be it makes the program the more readable. Is it okay? आगे बढ़े? यस सर। ओके, सो देखो ध्यान से। सो जावा में जो लूप होगा, वो लूप आपके दो तरह के लूप होंगे और दो कैटेगरी के लूप होंगे। वन इज एंट्री कंट्रोल, दूसरा होगा एग्जिट कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल जा रहे हो, और स्कूल जाते समय अगर आपका आई कार्ड गेट पे चेक हो रहा है कि मतलब आपको आई कार्ड दिखा के एंट्री मिलेगी, ऐसे केसेस में वो एंट्री कंट्रोल होता है। दैट मीन्स हम लूप के अंदर घुसने से पहले ही हमारा कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन आपका ट्रू है, तब then only you are allowed to enter in the loop, and in such situation is called entry control. सेकंड इज द एग्जिट कंट्रोल। एग्जिट कंट्रोल का मतलब होता है कि आपको पहले अलाउड कर दिया जाएगा जाने के लिए, लेकिन एक बार अंदर चले गए और अंदर से जब बाहर आ रहे हो तो बाहर आपको ऐसे नहीं आने देंगे। बाहर आते समय आपका कंडीशन चेक किया जाएगा। दैट मीन्स यू हैव एंटर इन द क्लास, बट यू कैन नॉट गेट आउटसाइड द क्लास अनलेस एंड अनटिल बेल होगा। तो अगर आपको कंडीशन बाहर निकलना है तो आपको बेल का वेट करना पड़ेगा। बेल हुआ तभी आप बाहर निकलोगे। So that is an exit control. Is it okay? So there is a two types of entry control. One is a for loop and one is a while loop. And third type of loop is do while. That is a exit control. Is it okay? यस सर। यस सर। Okay. कोई डाउट होगा वहीं पे आप बोल सकते हैं, वहां पे हम रुक के हम उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए। If I have to use any of the loop, okay, if I have to use any loop, कौन सा loop है? There are three types of loops are there. One is for loop, second is while loop, and third is do while loop. So if I have to use any of the loop, in सारे loop में some basic things I have to remember. What are the basic things are there? Now listen, if I have to use any of the loop, I have to remember some basic we can say the basic things. The first basic thing is we can say the first is initialization. INITILIZATION, ये अपनी कॉपी में भी ध्यान से लिखिएगा। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन, मतलब हमने कहा कि आपको ग्राउंड में ग्राउंड का अपने आप फॉर एग्जांपल आपके पीटी टीचर ने कहा कि आपको ग्राउंड में फाइव राउंड्स लगाने हैं ग्राउंड के। तो 5 राउंड्स कैसे लगाओगे? आप पहले स्टार्ट करोगे, काउंट करोगे, एक बार रन किया तो काउंट किया 1, फिर दूसरे बार 2, तीसरे बार 3, 4 टाइम्स काउंट करोगे 4 एंड 5 टाइम्स, और जैसे 5 कंप्लीट होगा आप रुक जाओगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपने स्टार्ट कहां से किया? 1 से। सो इनिशियलाइजेशन विल बी 1। ओके, सो जहां से भी हम स्टार्ट करेंगे अपने वेरिएबल की वैल्यू, दैट इज द इनिशियलाइजेशन। सो लूप में हमेशा इनिशियलाइजेशन मुझे देने की जरूरत पड़ती है। द सेकंड थिंग व्हाट आई हैव टू डू इज, सेकंड इज कंडीशन। आपने 1 से स्टार्ट तो किया रन करना, लेकिन कब तक रन करोगे? जब तक आपकी काउंट 5 ना हो जाए, तो कंडीशन हो गया। थर्ड इज बॉडी ऑफ द लूप। बॉडी ऑफ लूप मतलब आपने काउंट 1 किया तो 1 में कर क्या रहे हो? आप ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हो या जो काम दिया गया वो काम कर रहे हो। ओके, सो दैट इज द बॉडी ऑफ द लूप एंड दैट व्हाट वी राइट इन द प्रोग्राम। एंड फोर्थ इज आफ्टर रनिंग वन राउंड, आपने क्या किया? अपना काउंट बढ़ाया। तो आफ्टर ईच स्टेप वेदर यू आर इंक्रीजिंग द काउंट और डिक्रीजिंग द काउंट, मैंने बोला 5 से लेकर 1 तक लिखना, तो आप 5 के बाद 4 करोगे, 4 के बाद 3 करोगे। अगर मैंने 1 से बोला 5 तक लिखने के लिए, तो 1 लिखोगे, फिर 2 लिखो। आइदर यू इंक्रीज और डिक्रीज, नो। सो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट, INCREA,
MENT, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, DECREAMENT, decrement. Okay, so increasement, or we can say the increment or decrement. That is the fourth part of any loop. So whenever I have to use a loop, I must aware about what is the initialization, what is the condition, what is the body of the loop, and what should be the increment or decrement. Is it okay to all? Yes, sir. Yes. ये चारों चीज तीनों लूप में यूज होगा, ठीक है, बट द वे ऑफ यूजिंग द प्लेस ऑफ द ऑर्डर विल बी डिफरेंट, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। अब आगे देखो ध्यान से देखो। नेक्स्ट देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? अगर आपको ये पता है कि हमें कितने बार दौड़ना है, या आपको ये पता है कि आपको कितने बार पर्टिकुलर काम को करना है, तब वहां पे हम फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। सो फॉर लूप क्या होता है? तो फॉर लूप में आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब एक ही जगह पे होता है, ठीक है। सो ये तीनों में से कोई पूछे कि आपको कहाँ कौन सा फॉर यूज करें पर्टिकुलर सिचुएशन में, सिंपली क्वेश्चन पढ़ के आप ये देख लो कि उसमें कितने बार आपको, whether you know कि exactly how many times the task has to be performed. If yes, then use the for loop. Okay, so what is the syntax of the for loop is, you have to use the for, पहले लिखना पड़ेगा for, ठीक है। उसके बाद एक ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के अंदर में इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट इज द इनिशियलाइजेशन, देन सेमीकोलन, देन कंडीशन, सेमीकोलन, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये समझ में आ गया? हेलो? Yes, sir. Okay, okay. So, okay. Then you have to report the curly bracket and give the statement. तो ये काम कैसे करेगा देखो ध्यान से। पहले मैंने इनिशियलाइजेशन किया, सपोज मुझे 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग नंबर प्रिंट करना है, तो मुझे 1 से मैंने एक क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया int I इक्वल्स टू 1, ठीक है। कहां से कहां तक करना है? 5 तक मुझे करना है, ठीक है। तो मैंने चेक किया कि क्या I की वैल्यू 5 से कम है क्या, या 5 के बराबर है क्या। तो मैंने कंडीशन चेक किया कि वेदर I की वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 5 है क्या। अगर ये है, अगर आइदर इट मे बी अ ट्रू, आइदर मे बी अ फॉल्स। अगर ट्रू है तो प्रिंट कर दो I को, प्रिंट कर दिया, I को प्रिंट कर दिया, और I की वैल्यू को बढ़ा देंगे। फिर चेक करेंगे I की वैल्यू क्या 5 से छोटा या 5 के बराबर है क्या। अगर ट्रू है तो फिर से I को प्रिंट करेंगे, ये चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही I की वैल्यू 5 से बड़ा हो जाएगा, मान लो I की वैल्यू 6 हो गई, I की वैल्यू 6 हो गई, तो ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, आपका लूप बंद हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. अब इसको यूज करके देखते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है। अब एक नया फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, इसको एक न्यू कर लिया, इसको सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने एक आपको एक मैसेज दे देते हैं, एग्जाम्पल ऑफ EXAMPLE, एग्जाम्पल ऑफ फॉर लूप, और ठीक है। सो आई एम जस्ट creating a class for underscore demo, for demo नाम का एक क्लास बनाते हैं, for demo, और for demo के अंदर में हम लिखते हैं PUBLIC public, STATIC public static, VOID void, MAIN void main, और इसके अंदर में STRING string ARGS, ठीक है। और इसके अंदर में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, मुझे अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन करना है। क्या करना है, आई हैव टू प्रिंट द फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, ओके। एग्जांपल ऑफ फॉर लूप, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, टू प्रिंट फर्स्ट FIRST फर्स्ट 10 COUNTING काउंटिंग numbers, NUMBENUMVERS numbers, okay। so देखिए ध्यान से, I have to give the initialization, मैंने initialization दिया INT I इक्वल्स टू क्या, I इक्वल्स टू मैंने 5 दे दिया, सॉरी I इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना है, ओके। उसके बाद फॉर लूप, और सिंटेक्स कहता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या है,
या तो आप यहाँ से फॉर की वैल्यू सिंपली फॉर को आप डिक्लेयर कर दो, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दो। अगर आपने यहाँ पे नहीं डिक्लेयर किया तो आप फॉर के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, तो ये भी तरीका है। अगर आपने पहले डिक्लेयर किया तो बहुत अच्छा है, नहीं डिक्लेयर किया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 10 तक, ओके। एंड आई को क्या करेंगे, बढ़ाना है, तो आई इक्वल टू आई प्लस 1 या आई प्लस प्लस, ये इसके बारे में बता देंगे। आई प्लस प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि आई इक्वल टू आई प्लस 1, ओके। और इसके अंदर में हमें क्या करना है, इसके अंदर में हमने लिखा है सिस्टम SYSTEM सिस्टम डॉट OUT आउट डॉट प्रिंट प्रिंट LN, ओके। प्रिंट LN से क्या होगा, नीचे नीचे आएगा प्रिंट LN आई, ठीक है। और ये हमारा हो गया। अब ये होने के बाद आप फॉर लूप को क्लोज कर दो, और ये आपका होने के बाद आप अपने प्रोग्राम में एक और चीज कर लो कि आप अपना ये मेन फंक्शन को बंद कर दिया, और मेन फंक्शन के बाद अपने प्रोग्राम को पूरा बंद कर दिया। अब इसको सेव करते हैं, और आपका फाइल का नाम है फॉर डेमो फॉर अंडरस्कोर DEM डॉट जावा, और इसको हमने दे दिया ऑल फाइल्स, और इसको सेव किया, ठीक। अब इसको रन करना है, आते हैं वापस अपने कंपाइलर पे, और यहाँ लिखते हैं जावा सी FOR अंडरस्कोर DEMO डॉट जावा। आई होप इट इज क्लियर। Yes. Yes, sir. जावा FOR अंडरस्कोर डेमो DEMO डेमो, इसको रन किया। यू कैन सी आई एम गेटिंग द नंबर 1 to 10। सो मैंने प्रिंट कितने बार लिखा है, एक ही बार लिखा है। नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता, प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 ऐसे लिखना पड़ता। नाउ आई डू नॉट नीड टू राइट separate print statement for all the numbers. I have written only one line for the print, and all the numbers from 1 to 10 has been printed. Are you getting the point? Yes, sir. So I hope it is clear to all. Any doubts? No, sir. Okay. So today I will end up the class here, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे Yes, sir. while loop and do while loop। इजी लोग है ना, कि थोड़ा पढ़ें और थोड़ा सा डाइजेस्ट करके पढ़ना है, ठीक है। Okay, sir. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you.